Hello everyone, welcome to Insightful Maths. In today's session, we are going to discuss the chapter Triangle and its Properties, which is grade 7 chapter. It's a one shot video in which we are going to discuss all the topics which are there in this chapter. So sit along with a rough notebook and a pencil so that you can take the notes and you can do the questions along with me. So let's begin the session and don't forget to see the video till end. Alright, let's begin. So all these topics that we are going to cover in this chapter are, this is what is a median, altitude, the sum of the length of two sides of a triangle, that means triangle inequality theorem, exterior angle, third side property, Pythagoras theorem, or the questions on Pythagorean triplet, and the properties of isosceles and equilateral triangle. All these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so the first thing now we need to understand is what is a median and an altitude. You can have a look at this picture. This is the vertex of the triangle. We have triangle PQR. It has three vertices P, Q and R. If I draw a perpendicular means if let's say these are two lines and they are crossing each other at 90-degree angle, they are known as perpendicular lines. For example, these two are perpendicular, that means they make 90-degree angle with each other. So from a particular vertex, if I draw a perpendicular on the base, on the opposite side, आपके पास जो वर्टेक्स P है इसका ऑपोजिट साइड क्या है? एंगल P इज फॉर्म्ड बाय दिस लाइन सेगमेंट QP एंड PR. कौन सा लाइन सेगमेंट इज नॉट यूज फॉर मेकिंग P? दैट इज QR. तो ये जो लाइन सेगमेंट है QR, ये साइड, दिस इज ऑपोजिट टू एंगल P. तो P से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस परपेंडिकुलर और द हाइट इज नोन एज द ऑल्टीट्यूड. So what is the median? Median is again a line segment which, if drawn from the vertex to the middle point of the opposite side, इस vertex P के लिए opposite side क्या है? QR. अगर इसके middle point पे M पर मैं ये line segment join कर देती हूँ PM, that is the median. आप ऐसे याद कर सकते हो, M stands for middle point. दोबारा देखो, if I draw a triangle like this, let's say this is A, B and C. मुझे अगर B से मीडियन ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगी? पहले मैं देखूंगी B की ऑपोजिट साइड क्या है. आप देखो B इज फॉर्म्ड बाय दिस साइड एंड दिस साइड, तो कौन सी साइड यूज नहीं हुई? और विच इज द ऑपोजिट साइड? दिस वन. तो हम इस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को लेंगे, लेट्स से D, एंड आई जॉइन B विद D. मैं B और D को ज्वाइन कर दूंगी, दैट इज द मीडियन. Similarly, if I have to draw the median from point A, हम यहाँ से opposite side के middle point पे जाएंगे. Likewise, from C we'll go to the middle point of the opposite side. So median always goes from a vertex to the middle point of the opposite side. आप देखो एक triangle में how many medians are possible? It is 3. Maximum 3 medians are possible. सारे medians triangle के अंदर ही होते हैं. None of the medians can be outside. So what can be outside? Altitude of a triangle may be drawn outside also. Now one more interesting thing is, मैंने आपको बताया altitude is the height of the triangle. अगर मैं एक right angle triangle बनाती हूँ, please listen to this very carefully. If this is, let's say, a right angle triangle, मैंने आपसे पूछा what is the height or what is the altitude. So if this is A, B एंड C, ये जो साइड ए बी है, इज इट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल? ये तो हाइट है ना? सो ये वाला जो साइड है ए बी, ये ऑल्टीट्यूड भी है और ये आपके ट्राइंगल का साइड भी है. सो इन द केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, चाहे मैं ये वाली साइड लूं या मैं ये वाली साइड लूं, ये दोनों साइड सर्व एज एन ऑल्टीट्यूड. अब ये बी सी को मैंने ऑल्टीट्यूड क्यों बोला? अगर मैं इस ट्राइंगल को फ्लिप कर दूं, देखो फ्लिप एज इन BC ऐसे, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन. BC वर्टिकल चढ़ा गया और AB बेस को मैंने ऐसे ले लिया, समथिंग लाइक दिस. मैं कैसे भी इसको आई कैन प्लेस लाइक दिस, है ना? या तो AB पे रेस्ट कर सकता है या BC पे. अभी हम इसको AB पर रेस्ट करा रहे हैं. A
एंड बी, ये भी तो बेस हो सकती है ए बी, देन बी सी टॉप और ये ए सी, सेम फिगर है, ए सी हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, ये जो साइड पहले बी सी था नाउ इट हैज बिकम द ऑल्टीट्यूड। सो इन द केस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो दोनों साइड होती है which are making 90-degree angle, the sides are your altitude. Okay, they are giving you the height. Now I told you that altitude can be drawn outside the triangle as well. Let's see how. Triangle means a three-sided polygon. It is not necessary कि triangle हमेशा एक regular, ऐसा ही बने like this. ये भी triangle है ना. Let me name the vertices A, B and C. अगर मुझे ए से मीडियन डालना है, मैं ऑपोजिट साइड तक जाऊंगी, आप देखो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ये अंदर ही आएगा। सी से मीडियन डालना है इन, ए से डालना है इन, तो मीडियन तो अंदर ही रहेगा। अगर मुझे ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, वो तो परपेंडिकुलर है। अगर मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ये परपेंडिकुलर आया है ना, आई हैव टू एक्सटेंड दिस बेस, इसको एक्सटेंड करो, आप देखो दिस ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर इट इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो आप याद रखोगे ऑल्टीट्यूड, अगेन थ्री ऑल्टीट्यूड एंड थ्री मीडियंस आर पॉसिबल। Medians are always inside the triangle. Altitude may be outside the triangle as well. ठीक है, a quick recap. Median is a line segment which joins a vertex with the middle point of the opposite side. Altitude is the height or the perpendicular drawn from a vertex to the opposite side. Just the perpendicular height. Center से पास होना जरूरी नहीं है. Okay, so this is done. Let us go to the next slide. Again, very important theorem. Generally in your examination, question comes from this theorem. Triangle inequality theorem says that in any triangle, the sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. ये जैसे एक triangle है, आप इसका कोई भी दो साइड ले लो, उन दोनों का सम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ऐसा नहीं है, सम लेसर आ रहा है या इक्वल टू आ रहा है, दैट ट्रायंगल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो इफ आई द क्वेश्चन कम्स, कैन 2 3 5 फॉर एग्जाम्पल, मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। Question is, can these be the sides of any triangle? There is a difference. मुझसे पूछा है can these be the sides of any triangle. अगर मुझसे पूछा जाता right angle triangle, मैं इसमें कुछ और चेक करती। Any triangle में आप inequality theorem यूज करोगे। What does it says? आपको ये तीनों इनइक्वालिटी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चेक कर दिया ट्रू आ रहा है आंसर इज यस, आपको तीनों चेक करना है, तीनों में ग्रेटर देन आ रहा है तभी आंसर इज यस, अदरवाइज नो। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन वी हैव टू मेक थ्री कॉम्बिनेशंस। 2 प्लस, लेट्स से पहले हम लेते हैं 2 + 5। हमने पहले 2 लिया फिर 5 लिया, दोनों को ऐड किया, 2 + 5 इज 7। थर्ड साइड कौन सा बचा जब मैंने 2 और 5 लिया, थर्ड साइड इज 3। इज दिस 7 ग्रेटर देन 3? ये तो ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रू। अभी मैंने 2 और 5 लिया था, अनदर कॉम्बिनेशन आई एम टेकिंग 3 and 5। 3 + 5 व्हाट इज दैट, इक्वल टू 8। जब मैंने 3 और 5 लिया तो थर्ड साइड क्या बची, 2। 8 इज ग्रेटर देन 2, यहाँ भी ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 2 and 3। अब अगर मैं 2 + 3 को ऐड करती हूँ, मेरा आंसर क्या आया, 5, और थर्ड साइड क्या है, 5। इज इट ग्रेटर देन 5? इट इज इक्वल टू 5। इनइक्वालिटी सेज द सम ऑफ टू साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर तो इक्वल आ रहा है, इट्स अ क्रॉस हियर, सो योर फाइनल आंसर विल बी no such triangle is possible, and in the bracket you will be mentioning using the triangle inequality theorem. आप जब ये चेक करते हो आपको ब्रैकेट में थ्योरम का नाम लिखना होता है, अदरवाइज मार्क्स गेट डिडक्टेड। ठीक है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। लेट्स से द साइड्स आर 2 3 and 4. I'm taking smaller numbers for you to be calculate it easier and understand the topic. Take the combination 2 and 3. 2 + 3 it is equal to 5, third side is 4, 5 is greater than 4, ये ठीक हो गया। Now I'm taking the combination 2 and 4. 2 + 4 that is 6,
जब हमने 2 और 4 लिया 3 रह गया, इट इज ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक है। हम 2 3 2 4 ले चुके, अब बचा 3 एंड 4, 3 प्लस 4 दैट इज 7। जब हमने 3 4 लिया, 2 इज लेफ्ट आउट द थर्ड साइड, ये तो 2 से भी बड़ा है। आप देखो तीनों इनइक्वालिटी में द सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तीनों में ट्रू आ रहा है ना, ग्रेटर देन आ रहा है। आंसर इज यस, दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब आपको 3 साइड्स गिवन है और आपसे पूछा है कि क्या ये साइड किसी ट्राइंगल की हो सकती है, सो व्हाट विल यू डू, you will add two sides and check if it is coming greater than the third side, and ये आपको हर कॉम्बिनेशन के लिए करना है, आपको तीनों इनइक्वालिटी दिखाना है, ऐसा नहीं है एक में ट्रू सेकंड में ट्रू, फॉर ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन इट हैज टू बी ट्रू। Done? So I'm writing a question here. You can do this later on, and in the comment option you can write your answer if this is true or not. I'm giving you the sides 6, 7 and 8. ठीक है, आप चेक करके मुझे कमेंट में बताओगे if any such triangle is possible or not. Let's move to the next topic now. Angle sum property, one of the easiest and undoubtedly the most interesting and important property. It says that in any triangle, देखो यहाँ पे मैंने 3 ट्राइंगल बनाए हैं, किसी भी ट्राइंगल में, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, चाहे वो स्केलन हो, ये जो 3 इंटीरियर एंगल्स है ना, इन तीनों का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री। That means the property, angle sum property of a triangle says that the sum of the interior angles in any triangle is always equal to 180 degrees. ठीक है? So if I say, let us do 1 or 2 questions so that you remember this property well. I have made this triangle. I am giving you 2 angles and you need to find the third one. A, B and C. मैंने यहाँ पर खाली एक ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, आई एम नॉट गिविंग यू द वैल्यू, दिस वन इज 60, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना हुआ है, दिस इज 60 एंड दिस इज x, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चीज आप याद रखोगे, आप एंगल का वैल्यू निकाल रहे हो, एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन डिग्रीज, ठीक है, डिग्री का सिंबल इज लाइक दिस वन। तो जब भी आप अपना आंसर दोगे, एंश्योर टू पुट अ डिग्री सिंबल एट द टॉप एंड राइट दिस एंगल सम प्रॉपर्टी इन द ब्रैकेट that we have used this property. Beta, whenever any box is being made like this, it always means that these two lines are perpendicular and the angle between them is 90 degrees. ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखा है, automatically it means it is 90 degrees. Sum of all three is 180, so we'll write 90 plus 60 plus x, that is equal to 180. ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पूरा लिखना है, ओके। नाउ 90 plus 60 that is 150, so that means 150 plus x, it is 180। अगर मैं 150 को ट्रांसपोज कर देती हूँ ऑन अनदर साइड, प्लस बिकम्स माइनस, सो x इज इक्वल टू 180 minus 150, दोनों का डिफरेंस इज 30 along with this degree symbol, आंसर इज 30 degrees. Correct? Let us do one more question. Take some interest in the questions, you will understand it yourself, okay? The more questions you do, the more confidence you will gain. That's my question. I have given you this angle as 60 degrees. Angle C मुझे नहीं पता, ये वाला एंगल, let's say this is 70, आपको E की वैल्यू निकालनी है, the value of x. अब हम क्या करें? Can we tell what is the value of this interior angle? Yes, you must have studied that in your lines and angles. Any two lines which are making a cross like this angle and this angle, they are equal. Similarly, this angle and this angle, they are again equal. They are known as vertically opposite angles. ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन लाइन्स एंड एंगल्स, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, इट विल बी मच क्लियर फॉर यू. So there is a cross being made here, so this angle at the top and this angle at the down should be equal. तो पहले आप इसको मेंशन करोगे, this is 60 degree and what is the reason? Vertically opposite angles. इतना क्लियर हो गया?
अब नीचे देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है सी डी एंड ई. आई सेड इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ थ्री इंटीरियर एंगल्स इज 180. तो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए. पहले आप इक्वेशन फ्रेम करोगे 60, ये वाला, अनदर एंगल 70, अनदर एंगल x, इन तीनों का सम 180. ब्रैकेट में आप प्रॉपर्टी लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ 70 प्लस 60 इज हाउ मच? 130. 130 प्लस x इज 180. 130 को आप ट्रांसपोज करो, so x is the difference of 180 and 130. Answer is 50 degrees. That's your answer. It's an easy property. I hope you are able to understand this one. Correct? So you can try the questions based on this property and let me know if you are able to understand this. Another one very interesting property is the exterior angle property. Let me first explain you what is an exterior angle. Triangle देखो हम सबको पता है, अगर ये A, B और C है ना, ये angle है. This one is let's say A, this is angle B and this is angle C. ठीक है. अगर मैं इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर देती हूँ, देखो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, किसी भी एक साइड को अगर आप एक्सटेंड करते हो, ये वाला एक्सटेंडेड साइड ट्रायंगल के साथ एक एंगल बनाता है एंड दिस एंगल इज आउटसाइड द ट्रायंगल, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. हमने बोला दो एंगल, दोनों इंटीरियर होना चाहिए, दोनों ऑपोजिट होना चाहिए. लेट अस अप्लाई सम कॉमन सेंस. डू नॉट गेट कंफ्यूज कौन से दो एंगल को ऐड करें. सीधा सा पहले एक चीज देखो, ऑन अ स्ट्रेट लाइन दीज टू एंगल्स, द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 और हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर. राइट, द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन sum is 180, they are known as linear pair. अब यहाँ पर is this angle D making a linear pair with C? आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाता है. तो एक्सटीरियर एंगल के साथ जो इंटीरियर एंगल ज्वाइंट है ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, वो ऑपोजिट कैसे हो सकता है? वो तो इसको हेल्प कर रहा है, लीनियर एंगल है ना, लीनियर पेयर बनाने में. हमने क्या बोला? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ये इसके ऑपोजिट तो नहीं है, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो जो इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको आप छोड़ दो. other two angles you have to take. So that means this exterior angle D is the sum of A and B. समझ आया? Let me extend another side, then I think you will be able to understand it better. अब मैंने ये साइड एक्सटेंड किया, this angle I am taking at E. ठीक है. अब जो ये एक्सटीरियर एंगल E है, ये भी अंदर वाले दो एंगल का सम होना चाहिए. अब हमें तो नहीं पता कौन से दो एंगल का सम है ना. मैंने आपको क्या बताया? E के साथ डायरेक्टली कौन सा इंटीरियर एंगल कनेक्टेड है? B. आप B को नहीं लोगे. सो E इज द सम ऑफ A एंड C. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. This is my triangle. It is like this. I'll just name it A, B, C and D. हमें ये वाला एंगल x निकालना है. ठीक है. इट इज गिवन, ये वाला जो एंगल है 60 है और ये वाला एंगल भी 60 है. ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, यू हैव टू नेम दैट प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब आप देखो ये एक्सटीरियर एंगल एंगल सी से डायरेक्टली ज्वाइंट है ना, तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल तो लेना ही नहीं है. सो x शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, 60 प्लस 60. तो वैल्यू कितना आया? x इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. ठीक. अब हम इसमें क्या करते हैं? लेट अस मेक सम माइनर चेंजेस. अब द क्वेश्चन इज, हमें ना एक्सटीरियर एंगल इज गिवन. अब मुझे बाहर वाला एंगल पता है और मुझे अंदर वाला एक एंगल इज मिसिंग. लेट्स डू दिस. हमें रैंडमली सिर्फ वैल्यूज को ऐड नहीं करना है. अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तभी इन दोनों को ऐड करेंगे. इन फ्यू क्वेश्चंस आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर गिवन होता है, एक इंटीरियर मिसिंग. लेट मी एक्सप्लेन. अगर मैं बोलती हूँ ये वाला एंगल इज 130 डिग्रीज. ठीक है. ये 130 डिग्री है.
आपका ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस इज 70 डिग्रीज और हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 130 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू c, तो हमें 130 और c लीनियर पेयर है ना, इसका मतलब ये वाले एंगल से हमें मतलब नहीं है। एक्सटीरियर एंगल 130 इट इज इक्वल टू द सम ऑफ, आपको 130 प्लस 70 नहीं करना है, ये 200 नहीं है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ दीज टू, 70 प्लस x, तो x की वैल्यू कितना हुआ, 70 को आप यहां ले आओ, दैट इज 130 माइनस 70 इज x, आंसर इज 60 डिग्रीज। तो सीधी सी बात क्या है, अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इंटीरियर एंगल मिसिंग है तो एक्सटीरियर माइनस दिस इंटीरियर, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। So please do your textbook questions related to this. You will be able to do that easily. Next topic पे आ जाओ, third side rule. Very easy and understood, very much basic it is. Only one last question is there in one of the exercises related to this rule. अगर किसी भी ट्राइंगल की आपको दो साइड पता है, सो थर्ड साइड का ना एक रेंज होता है। रेंज मीन्स लेट्स अंडरस्टैंड, मेरे पास दो साइड है ट्राइंगल की 6 and 7 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। क्वेश्चन सेज थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल लाइज बिटवीन विच टू नंबर, यानी थर्ड साइड सबसे छोटा कितना हो सकता है, सबसे बड़ा कितना हो सकता है, उसका ना एक रेंज होता है। तो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर, आपको इन दोनों को ऐड करना है, 7 प्लस 6, यहाँ पर 7 प्लस 6 इज 13, एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू, 7 माइनस 6 इज 1। आपका ये जो थर्ड साइड है ना, ये दोनों के सम से छोटा होना चाहिए, दोनों के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। आप खुद बना के देख सकते हो, अगर एक साइड 7 है एक साइड 6 है और आपने थर्ड साइड 1 लिया, आप वो ट्राइंगल बना ही नहीं पाओगे, इट विल नॉट बी क्लोज्ड। Similarly, if one side is 7 and another is 6, आप तीसरा 13 लेते हो, you won't be able to make that triangle, ठीक है। तो सीधी सी चीज आप याद रखो, अगर आपसे थर्ड साइड पूछा जाए कि दो साइड गिवन है, थर्ड साइड मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, it is greater than the difference, it is lesser than the sum. So if I ask you the question, the two sides of a triangle are 2 centimeter and 5 centimeter each. What is the range of the third side? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बिगर माइनस स्मॉलर, 5 माइनस 2 3, दोनों का सम इज 7, आपका जो थर्ड साइड है 7 से छोटा 3 से बड़ा, ठीक है। दैट्स योर आंसर। Let's move to the next topic now. I have made a separate video on Pythagoras theorem. It is the most important topic of this chapter. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, please go and watch that video. One question from Pythagoras theorem is a must in any of the examinations. May it be your half yearly examinations of grade 7 or maybe it is a final examination. एक question आता ही आता है because this is one of the most important theorems in this chapter. Okay, so I'm not repeating that up, that for that you need to see that video. I have solved few questions also there, you will get the clarity. I'm just giving you a small hint or a recap. What does it says? In any right angle triangle, this theorem holds true only in the case of a right angle triangle, ठीक है। A, B and C, this side, the longest side is known as the hypotenuse, ठीक है, HYPOTENUESE, इसे hypotenuse कहते हैं। This is the base and this is the altitude, ठीक है। Pythagoras theorem says hypotenuse का square, longest side square is equal to the sum of, किसका sum, इन दोनों साइड का अलग अलग स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन तीनों में से दो चीज पता है, एक मिसिंग है, तो वी कैन इजीली फाइंड दैट आउट। हमने एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम किया था ना, जहां पे आपको 3 नंबर्स गिवन थे और आपसे पूछा था कि क्या ये नंबर कोई ट्राइंगल बना सकते हैं, है ना। तो हमने क्या किया था, वी हैव एडेड 2 नंबर्स, it should be greater than the third side, that is triangle inequality. Same question अगर आपको पूछा जाता है, there is a difference,
कैन दीज बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल? जहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा, आपको ध्यान में रखना है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको ये तीन साइड गिवन है और आपसे पूछा जाएगा आर दे मेकिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट? ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मींस आर दे फॉलोइंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर ये है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम सेज लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर गिवन नहीं होगा हाइपोटेन्यूज क्या है, यू हैव टू टेक इट योरसेल्फ। 2, 3 एंड 4 में ग्रेटेस्ट इज 4। सो अगर 4 का स्क्वायर यू हैव टू राइट, इफ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 square plus 3 square, then in the bracket following Pythagoras theorem this will be a triplet. 4 square कितना होता है 16, 2 square is 4 plus 3 square is 9. What is 9 plus 4? It is 13. Left hand side is 16, but they are not equal. ये तो equal नहीं है. So this 2, 3, 4 is not a Pythagorean triplet. Answer is not. ठीक है, ये Pythagorean triplet नहीं है. I'm taking another example. Let's say 2, 3 and 5. अब आपसे पूछा जाएगा is it a Pythagorean triplet? और Pythagorean triplet नाम नहीं दिया, ये पूछा जा सकता है can these be the side of a right angle triangle? राइट एंगल का नाम जहां भी आया आप क्या यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। टेक द लॉन्गेस्ट साइड। 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना। 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 25। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट इज 4। 3 का स्क्वायर इज 3 इंटू 3 विच इज 9। 9 प्लस 4 इट इज 13। लेफ्ट हैंड साइड इज 25। ये हो सकता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट? आंसर इज अगेन नो, बिकॉज दीज टू साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो एनी सच क्वेश्चन वेयर इट इज आस्क्ड कैन दीज बी द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप इसमें यही चेक करोगे। आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन हियर, quickly check and put in the comment whether these are the sides of a right angle triangle or not. ठीक है, I have changed the sequence. I have given you a triplet 5, 3 and 4. आपको चेक करके बताना है can these be the sides of a right angle triangle or not. I'll wait for your answers in the comment. नेक्स्ट, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आप देखो कितनी आसानी से चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको ये सब आ गया ना, प्लीज डू योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके, यू विल बी एबल टू डू दोस इजीली। अगर नहीं होगा, पुट दैट इन द कमेंट ऑप्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एज वेल। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सम स्पेशल ट्राइंगल्स, हम दो स्पेशल ट्राइंगल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दैट इज आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल में सारी साइड इक्वल होती हैं। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट इक्विलेटरल? दिस इज अ ट्राइंगल वेयर ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हर एक एंगल इक्वल है 60 डिग्री। एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है इसमें, ये देखो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया और जो यहाँ पे पॉइंट आया है ना, लेट्स से दिस इज डी, ये बी और सी का मिड पॉइंट भी है। सो इन द केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड दे ओवरलैप और दे कोइंसाइड ईच अदर। एक के ऊपर एक ही आता है, अलग अलग नहीं होता। जैसे हम कोई बेसिक ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं ना, तो यहाँ से मीडियन तो मिड पॉइंट तक जाएगा, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, तो दोनों अलग अलग है ना। लेकिन अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट है, मीडियन भी यही है और ऑल्टीट्यूड भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, कम टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल नाउ। आपको पता है दो साइड इक्वल है, सेम थिंग जो हमने इक्विलेटरल में पढ़ा, इसका भी ना मीडियन और ऑल्टीट्यूड ओवरलैप करते हैं। ये मिड पॉइंट है इसका, लेट्स से डी, तो ये ऑल्टीट्यूड भी है, ये मीडियन भी है, दोनों में सेम है। अनदर कैटेगरी और अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल इज, ये जो दो इक्वल साइड है ना, ये बेस के साथ इक्वल एंगल बनाती हैं। सो यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी। इक्वल साइड्स मेक
equal angle with the base in the case of an isosceles triangle. अब इसका क्या मतलब है, आप एक चीज समझो, आपको मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाती हूँ, लेट मी जस्ट चेंज द शेप, ठीक है, आप इससे समझ पाओगे कौन सी दो साइड इक्वल है। लेट्स से ये दोनों साइड इक्वल है, आई एम जस्ट नेमिंग इट अप ए बी एंड सी। मैंने आपको बोला इन द केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल विद द बेस। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। आसान सा तरीका क्या है, ये जो दो इक्वल साइड जिस पॉइंट पे कट करती है, ये देखो ये और ये इक्वल है, किस पॉइंट पे ये मिल रही है, बी पे। आप इस पॉइंट को छोड़ दो, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना उसको छोड़ दो, अदर टू एंगल्स विल बी कंसिडर्ड एज द बेस एंगल्स एंड दे विल बी इक्वल, राइट। आप यहाँ पे देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी ना, अगर हम एक्सटेंड करें ये कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, हम इसको छोड़ देंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, right? I'll just make one more figure, you can just check it out if you are able to understand. All right, okay, so if I say this is an isosceles triangle a b and c, अगर मैं आपको बोलती हूँ ये दोनों साइड इक्वल हैं, कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों साइड कहाँ पे कट कर रही है, ए पर, आप ए को छोड़ दो, देन दीज टू बेस एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। दूसरा अब मैं फिगर बनाती हूँ, लेट्स से this and I join this up, this is let's say a b and c। अब ये दो साइड इक्वल है तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, आप देखो this AC and BC, they are meeting each other at which vertex, take your time, another 1 minute and decide what should be your answer। This triangle I have given to you and I have written here AC and BC, ये जो दो साइड है AC और BC ये दोनों इक्वल है ना, ये कहाँ पर मिल रही हैं, C पर मिल रही हैं, आप C को छोड़ दो, so which two angles will be equal, A and B, ठीक है, understood, good to go। So please do the questions based on this property, this is all about this chapter, I hope it will make your life much easier and you can do your questions easily। So please do the NCERT questions, see you in the next session and please don't forget to like and subscribe the channel, thank you so much।